Hello guys, I'm starting the chapter from where I have left. Hope you all have understood the rest of the chapter and like it. Now I'm starting the chapter from where we have left. Later, lone Yudhishthira was racked with anxiety and thirst. Have they been subjected to a curse or they are wandering about in the forest in a vain search or water? Have they fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven desperate by an overpowering thirst, he started out to look for his brothers and the pool. अब युधिष्ठिर को चिंता होने लग जाती है कि उसके भाई कहाँ रह गए, कहीं उनको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाया किसी ने। तो वो प्यास के कारण मर रहा होता है युधिष्ठिर। तो वो कहता है मेरे को लगता है देखने जाना ही पड़ेगा अपने भाइयों को। तो वो जाता है। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken through tracks infested with wild boar and abundant spotted deer and huge forest birds, and presently came upon a beautiful green meadow, girdling a pool of crystal clear water, nectar to his eyes. But when he saw his brother lying there like sacred flagpoles thrown pell-mell after a festival, unable to restrain his grief, he wept. अब वो जब युधिष्ठिर जाता है अपने भाई उसी पूल की जगह में जहाँ उसके पानी लेने गए होते हैं उसके भाई, वहाँ वो देखता है कि उसके भाई जो हैं इधर उधर गिरे होते हैं, जैसे फेस्टिवल के बाद पोल्स गिरे होते हैं। वो अंदर से बड़ा रो रहा होता है। Then a sense of mystery overcome him, for this could be no ordinary occurrence. This world had no warriors who could overcome his brothers. Besides, there were no bounds on their bodies which could have let out life, and their faces were faces of men who slept in peace, and not of those who died in wrath. There was no trace of the footprints of enemy. There was surely some magic about it, or could it be tricked played by दुर्योधना। अब युधिष्ठिर जो है वो टेंशन में आ जाता है। वो देखता है कि उसके भाई इधर उधर गिरे हैं, तो उसको लगता है कि किसी ने कि वो सोचता है कि उसके भाइयों को रहने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं, और वो कहता है कि ये कोई आम बात नहीं हुई है, लगता है क्योंकि उनकी बॉडीज़ पे कोई इंजरी के निशान भी नहीं होते। तो वो सोचता है कि फुटप्रिंट्स भी नहीं होते कोई यानी दुश्मन के। तो वो सोचता है कि ये दुर्योधना का काम है। Might he not have prisoned the water? Then Yudhishthira also descended the pool in his turn, drawn to the water by a consuming thirst. At once, the voice without from warned as before, your brother died because they did not obey my words. Do not follow them. Answer my question first and then quench the thirst. This pool is mine. Yudhishthira knew that these could be none other than the words of Yaksha, and guessed what had happened to his brother. He saw a possible way of redeeming the situation. He said to bodiless voice, "Please ask your question." अभी वो जैसे ही पानी पीने लगना होता है युधिष्ठिर, तो एक सडनली से वॉइस आती है कि तुम अपने भाइयों को फॉलो मत करो, नहीं तो तुम्हें भी पानी ऐसे ही, अगर तुम पहले मेरे सवालों के जवाब दो तब फिर ही अपना प्यास बुझाओ। फिर वो कहता है चलो ठीक है। उसको लगता है कि ये याक्षा की आवाज़ है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, चलो आपने क्वेश्चन पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस rapidly one after another. It asked, what makes the sun shine every day? Yudhishthira replied, the power of Supreme. What rescue man in danger? Courage is the man's salvation in danger.
अब वो क्वेश्चन पूछता है कि सन को कौन शाइन करता है रोज़। वो कहता है सुप्रीम की पावर। और वो पूछता है कि डेंजर में आदमी को कौन बचाता है। वो कहता है करेज। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। वो पूछता है कि किस साइंस की स्टडी से आदमी वाइज बनता है। वो कहता कोई शस्त्र पढ़ने से नहीं, पर मैन वाइज नहीं बनता, ये उसकी विजडम होती है जो उसे मिलती है। द याक्षा आस्क्ड व्हाट इज़ मोर नोबली सस्टेनिंग दैन अर्थ। वो पूछता है कि अर्थ से ज़्यादा सस्टेनिंग कौन है। युधिष्ठिर कहता है जो मदर, जो अपने बच्चों को लाती है, वो सबसे नोबलर और सस्टेनिंग है अर्थ से। व्हाट इज़ हायर दैन द स्काई। वो कहता है फादर, क्योंकि फादर एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है जो ब्लेसिंग देता है, अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं मांगता। व्हाट इज़ फ्लीटर दैन विंड। वो पूछता है कि विंड से तेज़ क्या है। वो कहता है माइंड, ये किसी भी सोच तक जा सकता है। व्हाट इज़ मोर ब्लाइटेड दैन विदर्ड स्ट्रॉ, अ सोरो स्टिकन हार्ट। व्हाट befriends a traveler, लर्निंग। वो पहले पूछता है कि ट्रैवलर का फ्रेंड क्या होता है। वो कहता है लर्निंग, क्योंकि लर्निंग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवलर को सबसे ज़्यादा फ्रेंड लर्निंग ही होता है, क्योंकि उसे नई नई चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं, नए नए लोगों से नए नए लोगों से मिलता है, वो नई नई जगह के बारे में पता चलता है। Who accompanies a man in death। पूछता है कि आदमी को डेथ में कौन सहारा देता है। कहता है धर्म। कहता है वही जाता है, वही अकेला होता है जो आदमी की जर्नी के साथ एक जाता है। Which is bigger vessel, the earth which contains all within itself is the greatest vessel। वो कहते हैं अर्थ जो सबसे बड़ा वेसल है, बर्तन है, जिसने सबको इतना सब कुछ है उसके अंदर। Now I am ending the video. Hope you will like the video and like it and comment, share it. And don't forget to press the bell icon.